Good morning, my dear students. Welcome back to online class of science of class 5th. Hope you all are doing good at your home. Students, today in this video of science, I am going to start your lesson number 6. As you all know, in my previous video, I have completed your 5th chapter. So not further delay, take out your book and open lesson number 6. Here's your lesson number 6 and your lesson name is Solids, Liquids and Gases. Now, start the reading here. If you look around, you will see different things like table, chair, bag, chalk, etc. These things may differ in shape and size, but they have two things in common. They all occupy space and have some weight. स्टूडेंट्स, आप अपने चारों ओर बहुत सी चीज़ें डिफरेंट टाइप की देखते होंगे, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, बैग हो गई, चॉक. सो ये सब डिफ़र हैं शेप में, साइज़ में, बट इनमें एक चीज़ कॉमन है. टू चीज़ कॉमन है. एक तो ये ऑक्यूपाई करते हैं, एक स्पेस में रखी हुई है, स्पेस घेरती हैं, और दूसरा इनमें थोड़ा वेट होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर. सो जो भी चीज़ स्पेस घेरती है, उनमें वेट होता है, उसे क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं. नाउ नेक्स्ट हेयर, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बना होता है? इफ़ यू टेक अ पीस ऑफ चॉक and break it, it will break into small pieces. If you continue to break it, you will get smaller and smaller pieces till it become a powder. अगर आप एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि वो स्मॉल पीस में टूट जाता है, और अगर आप उसको तोड़ते जाएंगे तो वो एंड में क्या बनेगा? पाउडर बन जाएगा. In the same way, matter is made up of tiny individual particles called molecules. Same as matter भी बहुत छोटे छोटे invisible particles से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं molecule. Here you can see molecules are further made up of even tinier particles called atom. molecules भी atom से मिलकर बने होते हैं. So matter molecule से बना होता है, और molecules atom से मिलकर बने होते हैं. Atoms are tinier particles. All molecules in matter have some space between them called intermolecular space. So हर एक molecule matter का जितने भी molecules हैं, उनके बीच में थोड़ा space होता है. Here you can see ये छोटे छोटे बने हुए गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर, दीज आर मॉलिक्यूल, एंड हेयर इज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. आई होप यू गेट दिस पेपर. नाउ नेक्स्ट पेज. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. नाउ स्टेट ऑफ मैटर. The molecule in different object or matter are arranged differently. Depending on their arrangement, they exist in 3 states: solid, liquid and gas. Matter में molecule जिस तरह से arrange होते हैं, उन arrangement के base पर जो matter होते हैं वो 3 form में होते हैं, 3 states में होते हैं: solid, liquid and gas. So first of all we will study about solid. Here solid. Solid things like a book, a table, a pencil and a eraser etc. have a definite shape. आपने देखा होगा जो बुक की जो शेप होती है वही रहती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. टेबल सेम एज पेंसिल, सबकी डेफिनेट शेप है. द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, thus द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे होते हैं. हेयर यू कैन सी, सपोज इट इज़ अ book and the molecules are here. These are closely packed. ऐसे बिल्कुल closely packed होते हैं. इनके बीच में intermolecular space भी बहुत कम होता है, और इनके अंदर force of attraction बहुत ज़्यादा होती है. They have a definite volume. Volume in the space occupied by an object. So उनका definite volume होता है, मतलब जितना space वो occupy करते हैं उतने ही space में रहते हैं, change नहीं करते. Now next here you can see the example of solid: book, pencil, pen, table, and this is the arrangement of solid. Now next is liquid. Next stage of matter is liquid. Liquid like water, oil or juice have the following properties. Number first, the molecules are not very closely packed. The intermolecular force is weaker than in solid. Hence they do not have a definite shape. ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में, इसलिए इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. जिस कंटेनर में आप इसको डालते हैं वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन.
लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड बह सकते हैं. लिक्विड ऑक्यूपाई अ डेफिनेट स्पेस, हैंस हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. एक स्पेस, डेफिनेट स्पेस लेते हैं, इसलिए इनका भी वॉल्यूम जो होती है वो डेफिनेट होती है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हेयर गैसेस. एयर एंड वाटर वेपर आर गैसेस, दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. एयर, वाटर, वेपर जो होती हैं वो गैसेस होती हैं, उनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती है. नंबर 1, द मॉलिक्यूल इन गैसेस आर वेरी फार अपार्ट, thus देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरमॉलिकुलर स्पेस. द मॉलिकुलर फोर्स इज़ वेरी वीक, हैंस गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनिट शेप. स्टूडेंट्स, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैस की. मॉलिक्यूल इन गैसेस कैन स्प्रेड ईजली, हैंस दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. जो मॉलिक्यूल हैं गैसेस के वो बहुत ईजिली स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती. गैसेस आर ऑल्सो मैटर एज दे हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. गैसेस मैटर होते हैं क्योंकि ये इनके अंदर वेट होता है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. नाउ नेक्स्ट, इम्प्योरिटी इन वाटर. हेयर नेक्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबल इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? जो हमारे वाटर को में मिक्स हो जाए और उसे डर्टी कर दे, डर्ट बना दे, तो उसको इम्प्योरिटी कहते हैं. सबसे पहले सॉल्युबल इम्प्योरिटी. देयर आर इम्प्योरिटीज़ दैट गेट डिजॉल्व इन वाटर, दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. जर्म्स, साल्ट एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी. सो इम्प्योरिटीज़ जो डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी में, उन्हें सॉल्युबल इम्प्योरिटी कहते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे जर्म्स, साल्ट, मिनरल्स. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, दीज आर इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती और उन्हें हम देख सकते हैं. दैट इज़ सैंड, स्टोन, ट्विग्स, एग्जाम्पल्स आर ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. अब इन्हें इम्प्योरिटीज़ को कैसे हम प्योर कर सकते हैं, वाटर को इंसॉल्युबिलिटी को कैसे रिमूव करके हम वाटर को प्योर कर सकते हैं. हियर यू सी, soluble impurities present in water can be removed by boiling, adding chemicals like chlorine or potassium permanganate, or by filtering. So soluble impurities को हम रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग से, उनमें केमिकल ऐड करके, जैसे क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, और फिल्टर करके. And insoluble impurities present in water can be removed in the following ways. Sedimentation. Number 1, sedimentation. What is the process of sedimentation? Listen. Sedimentation is the process of allowing the insoluble impurities present in water to settle down, and the impurity that settle down is called sediment. Student, sedimentation में क्या होता है कि हम सबसे पहले insoluble impurities जो present है वाटर में उसको नीचे बैठने देते हैं, सेटल डाउन होने देते हैं. जैसे आप अगर रेत और पानी का मिक्सचर लें अगर और उसको मिक्स करें, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू रिसीव, इफ़ यू विल अलाउ दैट टू सेटल, रेत जो है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, एंड दैट इम्प्योरिटी इज सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंट. ओके, नाउ डिकेंटेशन. व्हाट इज डिकेंटेशन? Decantation is the process that follows sedimentation. It involves pouring out the clear liquid into the another container. अब हमने क्या करा, वो जो लिक्विड है और सैंड है, जो सैंड मिक्सचर है उसमें जब रेत नीचे बैठ गया तो पानी बचा ऊपर, उस पानी को हमने दूसरे बीकर में या कंटेनर में ले लिया, तो क्या होगा, एक कंटेनर में तो पानी आ जाएगा प्योर और दूसरे में क्या होगा, रेत बचेगा. So that process of the pouring of pure liquid into the another container, that process is called decantation. Okay, so decantation की process sedimentation के बाद होती है और इसमें pouring of clear liquid होता है into another container. I hope you get it the meaning of sedimentation and decantation. Now next page, filtration. Here you can see filtration. Filtration is the process of removing insoluble impurities present in water using a filter like a thin cloth, a strainer, or a filter paper. You must have seen your mother staining tea leaves using a strainer. So students, filtration एक process है जिससे insoluble impurities को remove किया जा सकता है with the help of filter paper या फिर किसी thin cloths के थ्रू. आपने देखा होगा जो आपकी मदर होती है टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टी, जब टी बन जाती है उसको जो स्ट्रेन करते हैं, उसको छानते हैं, तो
पत्ती अलग हो जाती है चाय की और चाय अलग हो जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, now try it yourself, you have to read it yourself. Okay, you have to read it. This is the activity, you can do it at your home. Now composition of air. Here you can see composition of air. Air किससे मिलकर बनी है? Air is a mixture of gases, water vapor and dust particles. So air एक mixture है water vapor का और dust particle का और gases का. The atmosphere contains 78% of nitrogen, 21% of oxygen and the 1% of other gases, 0.03% carbon dioxide, helium, argon, neon, etc. So these all are the mixture percentage of gases which is present in atmosphere, and the amount of water vapor present in the air in a place at a given time is called humidity. ह्यूमिडिटी क्या है? जो अमाउंट है वाटर वेपर की, जो भाप की वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंट अमाउंट है किसी भी प्लेस पर, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. प्लेसेस नियर द सी हैव हाई ह्यूमिडिटी. जो प्लेस होते हैं समुद्र के पास उनमें हाई ह्यूमिडिटी होती है. ऑक्सीजन गैस इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग एंड फॉर ऑल लिविंग बीइंग टू रेस्पायर. ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत क्यों होती है? कोई बर्निंग के लिए और सबको रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. Plants use carbon dioxide gas for the process of photosynthesis. Helium gas is filled in the gas balloons. जो गैस के बैलून होते हैं उसमें हीलियम गैस हम फिल करते हैं. आर्गन गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आर्गन गैस होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है और नियॉन गैस इज फिल्ड इन द नियॉन लाइट्स. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ गैसेस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज विंड ब्लो. विंड कैसे ब्लो करती है? आई होप यू ऑल यू गेट अपर टॉपिक्स दोज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ न्यू टॉपिक इज़ हाउ डज विंड ब्लो. हवा कैसे चलती है? स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली. द सन हीट्स द लैंड ड्यूरिंग द डे. सन लैंड को हीट कर देता है डे के टाइम में. द एयर अबव द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड. जो एयर होता है लैंड के ऊपर वो भी गर्म हो जाती है. वार्म एयर इज़ लाइटर एंड राइजेज अप. जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है. कूल एयर फ्रॉम अबव रशेज इनटू टेक इट्स प्लेस. और जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की जगह लेने आ जाती है. यू कैन सी, ये गर्म हवा है, ये ऊपर उठ रही है और जो ठंडी है वो नीचे आ रही है गर्म हवा का स्पेस लेने के लिए. दिस कॉजेज विंड टू ब्लो. और यही रीज़न है कि विंड ब्लो होती है. व्हेन द विंड ब्लोज, now next page, slowly it is called breeze. जब slowly wind blow होती है उसको breeze कहते हैं. when the wind blow fast it is called wind, and very fast blowing wind is called storm. Storms can uproot trees, blow off things. so जब blow fast wind को कहते हैं हम wind, और very fast blowing wind is called storm. ये trees को भी जड़ से निकाल सकती है. now next, ventilators are made close to the ceiling so that hot air that we breathe out can go out through them. वेंटिलेटर्स होते हैं ना सीलिंग्स के पास, सीलिंग फैन के पास, तो जिससे क्या होता है जो हम ब्रीथ आउट करते हैं हॉट एयर वो घर से बाहर निकल जाए. लैंड्स गेट हीटेड फास्टर एंड ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर एज़ कम्पेयर टू वाटर. जो लैंड्स होती हैं वो हीट भी जल्दी हो जाती हैं और ठंडी भी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. Now next topic, sea breeze. Here you see sea breeze. During the daytime the land gets heated faster than the water in the sea. Daytime में land जल्दी हीट हो जाती है water comparison to water in the sea. The air above the land get heated and rises. जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो हीट होती है और ऊपर की ओर जाती है. The water in the sea इस क्रिस्टल कोल्ड. अब भी पानी जो सी का है वो अब भी ठंडा है. कूल एयर यू सी फ्रॉम द अबव द सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस लेफ्ट बाय द वार्म एयर. और जो सी का की विंड होती है ऊपर से आकर जो वार्म एयर का स्पेस है लैंड पर वो ले लेती है, जिसकी वजह से ये सी ब्रीज कहलाती है. हियर यू कैन सी cool air is coming at the place of warm air and warm air is going upper side. Okay, now land bridge. At night the land cools down faster than water. रात में लैंड ठंडी हो जाती है, पानी अब भी गर्म रहता है. The water is still warm.
द एयर अबव द वाटर इज़ वार्म एंड राइजेस अप। जो एयर होती है पानी के ऊपर वो गर्म होती है और वो ऊपर की ओर आती है। एंड द कूल एयर अबव द लैंड रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। और जो कूल एयर होती है लैंड की वो उसका प्लेस ले लेती है। दैट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। हियर यू कैन सी जो पानी है वो कूल एयर, यहाँ से कूल एयर वार्म एयर की स्पेस ले रही है और वार्म एयर कूल की। इन दिस वे लैंड ब्रिज फ्लो. So this is the explanation of your lesson number 6. I hope you all get it very well. Students, the exercise of this chapter I will give you in my next video. Your homework is to read this new words and quick here you can see quick recall. These you have to read. It is sufficient for today. Thank you. Have a nice day. I will meet you in my next video. Take care.